1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਸਦੇ 974 ਅੰਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 1430 ਅੰਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ,
पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने यह तरस किया कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। एक निर्मल पंथ चलाता। पंथ तू भावना है रस्ता कि अपनी मंजिल तक पहुँचने लई जिस राह दे उपर तुरिया जाता है उसनूं पंथ किया जाता है। ते बाबे नानक ने निर्मल पंथ की शुरुआत की। हुण मैं पहला अर्ज की है कि ये नहीं कि पहले पंथ नहीं ने, पहले धर्म नहीं ने। बाबा नानक आप अपनी बाणी अंदर आखते हैं कि काजी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावे जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। ये अपने धर्म के राह तो थिड़क चुके सन ते महाराज ने फिर एक पंथ की आरंभता की और पंथ की अगवाई लई ग्रंथ की भी लोड़ है। इसलिए गुरुदेव पातशाह ने पंथ के नाल और ग्रंथ के नाल, ग्रंथ तो भाव है शब्द, ग्रंथ तो भाव है उपदेश, ग्रंथ का भाव है सिक्ख्या। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने यह तरस किया। साध संगत जदों सिद्ध पूछते हैं बाबा नानक कोलों कि हे गुरु नानक सच्चे पातशाह तुहाडा गुरु कौन है। सिद्धा ने कुछ सवाल किए सन जो असी सिद्ध गोश की बाणी अंदर पढ़ते हाँ। वो आखते हैं कि कवन मूल कवन मत वेला, कौन गुरु जिसका तू चेला। गुरु नानक सच्चे पातशाह सिद्ध गोश की बाणी अंदर रहमत करते हैं। महाराज आखते हैं कि पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जे सिद्धा ने सवाल किया कि इस सृष्टि की आरंभता कदों हुई, कि कवन मूल, इस सृष्टि का मूल की है, आधार की है। कवन मत वेला, कौन गुरु जिसका तू चेला। कि हे गुरु नानक सच्चे पातशाह तुसी किसदे सेवक हो, किन्हां दे चेले हो। ते महाराज ने आख्या सी पवन आरंभ, सृष्टि की आरंभता पवन तो हुई है। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, जिसनों गुरु नानक सच्चे पातशाह ने श्री राग राग अंदर इस तरह बयान किया है। महाराज आखते हैं कि साचे ते पवना पिया। सच्चे निरंकार तो पहला पवन आई, पवने ते जल होए, फिर पवन तो जल लिक्विड रूप दे विच आया, ते जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए, घट घट दे विच वाहिगुरु सरगुण रूप दे विच वसदा है। सच्चे तो पहला पवन आई। महाराज आखते हैं कि साचे ते पवना पिया। इत्थे भी महाराज आखते हैं कि पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुर धुन चेला। हुण बड़ा ध्यान देना इस पंक्तियां वाल। महाराज आखने मेरा गुरु शब्द है और ये शरीर चेला नहीं है, अंदर की सुरत जड़ी है वो चेला है। जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज मक्के की धरती पर गए, मैं संखेप जी अर्ज कर रहा, तो मक्के की धरती के उपर मोलाने आके घेर लैंदे ने बाबे नानक नूं। आखन लगे बाबा नानक तू अपने कोलों कुछ ना दस, जो तेरे कोल एक किताब है ना, असी पोथी साहब कहते हैं सत्कार दे नाल। भाई गुरदास जी आखते हैं कि उन्होंने मुलाणिया ने, मौलविया ने बाबे नानक नूं आख्या अपने कोलों नहीं दस, जो तेरे कोल किताब है इस किताब नूं पढ़ के दस, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजों दोनों रोई। महाराज आखन लगे जे चंगे अमल नहीं, भावें वो हिंदू है तो भावें वो मुसलमान है, जे चंगे कर्म नहीं उहदे उन्होंने पछताना ही पेगा। उत्थे भी गल शब्द की कीती बाबे नानक ने। हुण तुलंबे की साखी असीं कई बार पढ़ी सुनी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जो तुलंबे की धरती पर पहुँचे, सज्जन ठग जड़ा है एक पासे उसने मसीत बनाई हुई है। जे कोई मुसलमान आंदा तो मसीती दे भेजता है, कि जे कोई हिंदू वीर आया उन्होंने धर्मसाल वाल भेजता है। बाबा नानक आए मरदाना जी दे नाल बड़ी आओ भगत की। हुण साध संगत ध्यान करना कि गुरु नानक सच्चे पातशाह के दर्शन कीते ने सज्जन ठग ने। महाराज की गलबात भी सुनी होएगी, पर जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह ने शब्द की रहमत वरताई, ये शब्द उच्चारण किया कि उजल के हाँ चिलकना, घोटे मकालड़ी मास धोतियां जूठ न उतरै, जे सो धोवां तिस सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन,
जिथै लेखा मंगीए तिथै खड़े दिसन। वो शब्द दे ऐसे तीर लगे कि सज्जन वाकई सज्जन बन गए आ। शब्द की बरकत वरती जिसनों महाराज आखते हैं कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सिख दा गुरु शब्द है। कबीर साहब ने बड़े प्यारे वचन किए ने। वो आखते हैं कि सतगुर सूरमे के कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक। सतगुर ने शब्द का ऐसा तीर छोड़िया कि लागत ही भोए गिर परिया परिया खलीजे छेक। कि शब्द की ऐसी बरकत वरती हिरदे दे विच कि मैं हुण जमीन के उपर डिग पिया। जिहड़ा हंकार होमे सी वो सारी त्याग दिती। हुण जीवन जिहड़ा है वो गुरु अनुसारी हो गया। सतगुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मना रहे हाँ। पहला गुरुदेव ने रहमत की कि बाणी किन्हां समियां अंदर आई। किहड़े वो हालात सन। हर वेले बाणी नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ਜਾਂ जिन्हां भी महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब अंदर अंकित है हर वेले बाणी नहीं सी आंदी। विद्वान ये आखते हैं कि जदों मालिक के चरणों के एकमिक हो जाना, जिन्हों कबीर साहब ने बड़े प्यारे वचन किए हैं। वो आखते हैं कि एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जदों एक जोत तो भाव अंदर की सुरत मालिक के चरणों के नाल जुड़ गई। अगे वो सवाल करते हैं कि किंबा होए महोए की वो टुट सकती है? आख लगे बिल्कुल नहीं। कि एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित घट नाम ना उपजै। जिस हिरदे अंदर परमात्मा का नाम ही नहीं वसता फूट मरै जन सोए। वो सदा ही दुखी रहंदे ने। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा धोए। आख लगे हे मेरे सावले मालिक जी मेरा मन तेरे चरणों के नाल लगा हुआ है। कबीर साहब जो शब्द के अंदर रहमत करते हैं कि एक जोत एका मिली। जदों जोत एक परमात्मा के नाल मिल गई एकमिक होई तो गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जदों उस मालिक के गुण गाते हैं उस प्रभु की याद से जुड़ते हैं तो ये सहज सुभाए वचन आखते हैं कि मेरे लाल जीओ तेरा अंत न जाना। जा गुरु नानक सच्चे पातशाह आखते हैं कि तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लाहा। रब्बी याद दे जुड़े ते मालिक की बाणी हिरदे अंदर अवतरण हो गई, हिरदे अंदर प्रगट हो गई। आखते हैं कि तेरे कवन कवन गुण कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। मालिक के गुणों के नाल जुड़े ते रब्बी कलाम उचारण करता रब्बी बोल। वो आखते हैं आपों बोल ना जानदा मैं कहिया सब हुक्माव जीओ। आखन लगे मैं अपने कोलों कुछ नहीं कह रहा। ये मालिक के हुक्म दे विच नानक बोल रहा है। वो मालिक ही हिरदे दे चों बोलते ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जे लोकाई का दर्द देखते ने तो गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने अहमनाबाद की धरती के उपर जिसनों सैदपुर कहा जाता है बाबर का कतलेआम देखिया तो बाबे नानक की फिर कलम यख तलख जड़ी है वो बोली तो महाराज ने शब्द उच्चारण किया कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जम कल मुगल चढ़ाया एती मार पे कुरलाने तैं की दर्द न आया। जदों शरीर कट्टे हुए देखे कतलेआम देखिया तो बाबे नानक की जबान फिर चुप नहीं रही। उन्होंने कहा कि बाबर तू बाबर नहीं तू जाबर है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 4 शब्द उच्चारण किए सन जिन्होंने बाबर बाणी किया जाता है। भाव कि उस वेले के हालात दे विच और गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भविखबाणी भी की। जिहड़ा शब्द असी पढ़ते हाँ कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगै दान वे लालो। ये बाबर दे आण तो पहला का शब्द है। इस शब्द के अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 7 वार लालो का नाम उच्चारण किया कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगै दान वे लालो। जे तीसरे शब्द की गल करते हाँ तो महाराज आखते हैं कि जिन सरसोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर से सरकाती मुनियन गल विच आवे धूड़। इस शब्द गुरुदेव पातशाह ने उच्चारण किया।
इंज कह लवां कि लोकाई के उपर जदों गुरदेव पातशाह ने विपता देखी तो महाराज के हिरदे दे विचों ये पावन बचन निकले। रब दे नाल गल्लां करदियां होइयां भी बाणी आई। भगत नामदेव जी के बचन ने वो आखते ने कि हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हिनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। ये रब नाल गल्लां करदियां होइयां भगत नामदेव ने शब्द उच्चारण किए ने। धनासरी राग अंदर तुसीं शब्द सुनते हो, पहल पुरीए पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना। इस शब्द दियां अखीरियां पंक्तियां ने जदों आखदे ने कि तू कुन रे, तू कौन है, तो भगत नामदेव जी आखते ने मैं जी नामा हो जी। रब दे नाल गल्लां करदियां होइयां भी बाणी आई है। घर दे गल चली, कबीर साहब नूं कबीर दी मां आखदी है कि कबीर तू दुनियावी कमां नूं त्याग के मालिक दे नाम दे नाल जुड़िया होया, इन्हां बच्चियां दी परवरिश कौन करेगा। ते बाणी आ गई, कबीर साहब आखदे मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बार कैसे जीवै रघुराई, तनना बुनना सब तज्यो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। ते कबीर साहब आखने माँ तू चिंता ना कर कि जब लग बाहों तागा बेही तब लग बिसरै, राम स्नेही के मेरिए माए, जदों मैं उस सोई दे विच तागा परोंदा हां ना, ते तागा परोण वेले उस नली दे विचों धागा खिंचिया जाता है हवा के आसरे। उस वेले मेरी जबान परमात्मा के नाम तो कुछ टाइम लिए थम जाती है। कहने मेरे को वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तू चिंता ना कर क्योंकि हमरा इनका दाता एक रघुराई, मैनू और इन्हां बच्चियां नूं पालन वाला वो मालिक है। बाणी आई, बड़े प्रकरण ने जदों बाणी आई, पर गुरुदेव पातशाह ने इंज कह लवां कि 35 महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर अंकित की गई। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिस धर्म का मुढ़ बन्निया, महाराज ने पंथ की भी गल की, नाल नाल ग्रंथ की भी गल की। और इस ग्रंथ लई धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज ने यह रहमत की कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना की, पर संपादना की लोड़ क्यों पई। सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह अमृत वेले अपने निज स्थान के उपर अमृतसर की धरती पर मौजूद ने। जदों अमृत वेले दरबार साहिब विखे जिथे चौकियां कड़ियां जांदियां सन, कीर्तन गाया जांदा सी, उत्थे संगतां वो शब्द पढ़ रही सन जो गुरु पातशाह जा भगत साहबाना का शब्द नहीं है। वो शब्द सी मेहरबान जी का। ते मेहरबान ने बाबा प्रिथी चंद जी के सपुत्र गुरु अर्जुन देव महाराज दे भराता बाबा प्रिथी चंद वड्डे वड्डे उन्हां दे सपुत्र ने मेहरबान। ते मेहरबान का शब्द और मेहरबान ने चलाकी ये वरती कि शब्द के नाल नानक पद की भी वरतों की। नानक पद तो भाव है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तक जो तुसीं बाणी पढ़दे हो तो कह नानक, नानक शब्द वरतिया गया है। मेहरबान ने भी उत्थे नानक पद वरतिया, भगतां दा अपना नाम है, भट्ट साहबाना ने अपना नाम वरतिया है, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह के घर लिए केवल नानक पद वरतिया गया। वो मेहरबान ने वरतिया शब्द। और मेहरबान जी सियाणे सन, इसी कोई शक नहीं है। 4 भाषावां ब्रिज भाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये 4 भाषा लैंगुएज उन्होंने आंदियां ने। पर धन गुरु अर्जुन देव महाराज ने फिर भाई गुरदास जी होरां नूं बाबा बुढ़ा जी नूं बुला के रामसर के कंढे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना जिहड़ी है आरंभ की। 1604 विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना मुकम्मल हुई। 1601 तो लैके 3 साल का समा लगा। साध संगत धन गुरु अर्जुन देव महाराज जदों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं हरमंदर साहिब के प्रकाश करते हैं तो ग्रंथी की चोण लई
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਹਣ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 98 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੈ। 98 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ 125 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 113 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ, ਲੇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ, ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, RAM ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਚੋਰ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣਗੇ ਜੋ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
पर शब्द गुरु का प्रकाश जिथे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह की फुलवाड़ी है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज के समय तक गुरु नानक सच्चे पातशाह की सिੱਖੀ का प्रचार केवल हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान तो बाहर भी बहुत हो चुकिया सी। ते गुरुदेव पातशाह आखणगे कि सिੱਖਾਂ की अगवाई लिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना, उन्होंने स्वरूप हर जगह होने जरूरी ने। ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह का हरमंदर साहिब विखे अमृतसर विखे प्रकाश किया गया। एक बारी फिर मैं बेनती करते हाँ कि जिस पावन स्वरूप का प्रकाश होया वो गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज ने आप भाई साहब भाई गुरदास जी होरां कोलों लिखवाया, जिस दे विच 5 गुरु पातशाह की बाणी है, 974 अंक ने और गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश हरमंदर साहब होया। पर जिस स्वरूप का जिन्हों गुरता गद्दी दी गई वो धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने आप भाई साहब भाई मनी सिंह जी होरां कोलों लिखवाए ने, जिन्हों दमदमी बीड़ किया जाता है। वो स्वरूप 4 तख्तां दे उपर जिथे भाई मनी सिंह जी नाल ही बाबा दीप सिंह जी उन्होंने ये 4 स्वरूप लिखवा के 4 तख्तां दे उपर, क्योंकि इस वे 4 तख्त मौजूद सन, उन्होंने उपर प्रकाश कराए। साध संगत धन गुरु अमरदास महाराज के समय की एक घटना साझी करके समाप्ति करा। गुरुदेव पातशाह बाणी पढ़ रहे सन, कुछ जोगी लोग आए तो सिखां नूं आखण लगे कि गुरु पातशाह नूं मिलना है। सिखां ने आख्या कि गुरुदेव पातशाह जे बाणी पढ़ रहे ने। वो जोगी हस पे आखण लगे कि सिख बाणी पढ़न, श्रद्धालु बाणी पढ़न ते ठीक है, अजे गुरु भी बाणी पढ़ रहा है, अजे गुरु नूं भी बाणी की लोड़ है। सिखां ने कुछ जवाब नहीं दिता। गुरु पातशाह जदों बाणी पढ़ के वेले होए, महाराज बाहर आए। सिखां ने आख्या गुरुदेव पातशाह ये जोगी लोग इस तरह कह रहे हैं भई गुरु नूं भी बाणी पढ़न की लोड़ है। धन गुरु अमरदास महाराज ने जोगियां नूं आख्या कि हे जोगियो, जे कोई पहाड़ खुदन लगे और पहाड़ दे विचों कीमती हीरे जवाहरत मिलन लग जाण ते की करना चाहिए? वो जोगी कह लगे महाराज फिर तो होर खोदना चाहिए। तो महाराज कह लगे मैं उही ते कर रहे हैं। बाबे नानक ने सानू ये कहा सी कि मत विच रतन जवाहर माणक, जे गुर की सिख सणी गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, ओ मालिक कदे विसरे ना, सतगुर कृपा करन। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पहले प्रकाश पुरब दियां आप समूह संगतां नूं लख लख वधाइयां।